ਮਹਿਫਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਬੋਪਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਠਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, MD MBBS ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਬੋਪਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ ਕਠਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 2020 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 2019 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਲਿਆ ਸਡਨਲੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮਿਡ ਆਫ ਮਾਰਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੰਮ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ ਘੱਟ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੈਂਡ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਥ ਸੀ ਜਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਮ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ PR ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 50,000 ਤੋਂ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਿਟੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਮ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼? ਇੱਕ ਰੋਦਰਹਲਡ ਫਾਲਸ ਫੈਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਯੂਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਰੌਕਫੈਲਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅਬਵ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੌਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਲਨ ਮਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਬੈਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸਤਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਸੀ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ GDP ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, वेलकम जी, वेलकम वेलकम इन द स्टूडियो महफल टीवी। तो आपका स्वागत है। हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे न्यू वर्ल्ड बारे में, तो आप भी काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं। और मैं पहले थोड़ा डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि ये MBBS MD डॉक्टर हैं और इनकी 25 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस है अपने फील्ड में। और मुझे लगता है कि इनसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि ये महामारी थी कि सच में, और ये एक फेक जो प्लान था जो। डॉक्टर साहब इसके बारे में पहले बताइए, फिर बाद में और चर्चा करते हैं जी। पूरी दुनिया जिस महामारी की चर्चा करती है, और अभी अधिकांश लोग अभी भी जिसको महामारी मानते हैं, बेसिकली वो एक प्रकार का फेक प्रोपेगेंडा था। लोगों को मीडिया के माध्यम से बार बार ये बात फ्लैश की गई कि देखो लोग मर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग गिर रहे हैं। जो आपके क्रिमेशन ग्राउंड जो होते हैं, वहां पर देखिए लाशों को दफनाने के लिए JBC मशीन लगानी पड़ रही जैसी है। तो इस प्रकार के कई तरह के पुराने पिक्चर्स, जहां पर कि कुछ पुराने कुछ नए मिक्स करके लोगों को ऐसा बताया गया मीडिया के माध्यम से कि कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई है और उसके प्रोटेक्शन के लिए हम सबको अपने अपने घरों के अंदर बंद होना है, और साथ में मास्क, वैक्सीन, वो सब प्रोपेगेंडा चला इसका। देखिए इस प्रोपेगेंडा के वैसे तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो षड्यंत्र है बहुत पहले से चला आ रहा है। इनका जो वास्तविक लक्ष्य है, दुनिया को, मानव जाति को गुलाम बना करके परमानेंट से उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। जैसा कि अभी आपको बताया, ये कुछ परिवार है जो चाहते हैं कि दुनिया का हर नागरिक उनकी गुलामी करे, कहीं कोई उनके गुलामी के चंगुल से मुक्त न हो जाए। तो उसके लिए रोज कुछ न कुछ नया सोचते हैं और नई नई बातें करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं तो इस पैंडेमिक के आने से पहले पैंडेमिक प्रिपरेशन की गई। न्यूयॉर्क के अंदर 18 अक्टूबर 2019 को एक पैंडेमिक प्रिपरेशन होती है, जहां पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ द हेल्थ साइंस, ये तीन लोग मिलकर के उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और दुनिया के कुछ लोगों, कुछ देशों के प्रतिनिधि उसके अंदर होते हैं। वहां पर यह तय होता है कि अगर पैंडेमिक आया, इफ पैंडेमिक आया तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से हम पैंडेमिक को रोकने की कोशिश करेंगे। और मजे की वहां पर एक ये बताया गया कि सपोज कोरोना नाम का कोई पैंडेमिक आ जाता है और इस प्रकार से कोरोना वायरस बनता है, ऐसा फैलता है, तो हम क्या करेंगे। तो ये पूरी जो कहानी आप देख रहे हैं पीछे से कोरोना नाम से पैंडेमिक बनाने की, बिल गेट्स ने बकायदा एक पिक्चर की तरह इशारा किया और बताया कि अगला डिस्ट्रक्शन जो है वो
इस पेंडेमिक से होगा, न कि एटम बम से होगा। ये सब कहानी इस बात को बताती है कि इन लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि भाई हमें एक झूठा माहौल खड़ा करना है, एक मीडिया डेमिक खड़ा करना है और जनता को अपने अपने घरों के अंदर बंद करना है। मास्क के नाम पर उनके साथ जाति करनी है। आरटीपीसीआर टेस्ट के नाम पर क्या होता है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट बनाया गया, वो आरटीपीसीआर टेस्ट की जो एफिकेसी है, जो उसकी एक्यूरेसी है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। उस टेस्ट के माध्यम से लोगों को आइसोलेट किया गया। लोगों से कहा गया कि आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। पेशेंट का मतलब ही होता है कि जब आपको सिम्टम आते हैं, आप किसी इंसान को पेशेंट डॉक्टर के पास तभी जाएगा जब सिम्टम आएंगे। अब एसिम्प्टोमेटिक तो हमारे बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक तो में हर बीमारी है, हर इंसान के अंदर एसिम्प्टोमेटिक टीबी भी है, एसिम्प्टोमेटिक मलेरिया भी है, एसिम्प्टोमेटिक टाइफाइड भी है। आप कोई भी टेस्ट करेंगे कुछ न कुछ पॉजिटिव उसके अंदर आ सकता है। तो एसिम्प्टोमेटिक तो सारे होते हैं। और जिस प्रकार से टेस्ट करेंगे, 100 लोगों में टेस्ट करेंगे, कोई भी टेस्ट कीजिए 100 में तो 2 4 5 तो पॉजिटिव आ ही जाते हैं, क्योंकि टेस्ट की जो एक्यूरेसी होती है वो 100% नहीं होती है। उसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव भी होता है, फॉल्स नेगेटिव भी होता है। तो ये जो पूरा गेम जो खेला गया, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम था और इसके अंदर कई स्टेट गवर्नमेंट, कई कंट्री के गवर्नमेंट, कई प्राइम मिनिस्टर, कई प्रेसिडेंट इसमें शामिल है और बहुत लंबे टाइम से ये योजना बनाई गई थी। और अपने अपने प्यादे अलग अलग स्टेट में स्टेट हेड के तौर पर इन लोगों ने पहले ही बैठा दिए थे, ताकि ये जब काम शुरू हो तो उनके जो बैठाए हुए लोग हैं वो काम करें। तो चाहे वो कनाडा का प्रधानमंत्री जी हो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे पाकिस्तान के हो, ये सब उनके बैठाए गए प्यादे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यूएस के अंदर, यूएस की बात करें तो यूएस में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने थोड़ा सा इसका विरोध किया था, जो ट्रम्प थे। ट्रम्प ने इसका विरोध किया तो फिर उसके बाद आपने देखा कैसे कैसे चीजें बदली और यहाँ तक कि बताया जाता है कि ट्रम्प जो है वो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन इलेक्टोरल चेंजेस करके उनको भी हारा हुआ बता दिया। अब जो इतनी बड़ी ताकतें हैं जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करती है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करती है, यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंट्रोल कर लेती है, तो वो तो फिर इस दुनिया में उनके लिए छोटे मोटे अफ्रीका के देश या एशिया के छोटे मोटे देशों को कंट्रोल करना तो मामूली काम है उन लोगों के लिए। जिस प्रकार से ये नियंत्रण स्थापित करते हैं, अगर किसी अफ्रीकन देश में किसी राष्ट्रपति ने आवाज उठाई कि भैया ये तो कोई पेंडेमिक नहीं है, तो उस राष्ट्रपति की इन लोगों ने हत्या करवा दी। कई लोगों ने इस बात का विरोध किया तो वहां के राष्ट्रपति को या तो पद से हटा दिया गया या वहां से। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑपरेशन था। ये मानव जाति का अब तक का सबसे बड़ा क्रिमिनल, एक नरसंहार जो अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन हुआ। इसके अंदर करोड़ों लोगों को घर में बैठा करके उनके साथ स्वास्थ्य की हानि हुई। जब वो हॉस्पिटल में गए उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। मान लीजिए एक अस्थमा का इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट करने की बजाय आपने कहा कि जी पहले इसका टेस्ट होगा, आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेके आओ फिर ट्रीटमेंट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अस्थमा का पेशेंट है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, ये पेशेंट तुरंत ट्रीटमेंट की इनकी रिक्वायरमेंट होती है, हाई ग्रेड फीवर वगैरह होता है किसी को, आप ट्रीटमेंट डिले कर देंगे तो वो मारा जाएगा। फिर लोगों को अलग अलग तरीके से घरों के अंदर बंद किया गया, कर दिया गया, लोगों को अपने परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया, डेड बॉडी को पैक कर दिया गया था कि वो डेड बॉडी को, अब वो डेड है या अंदर लाइव है ये नहीं पता चल पाया लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ी योजना बना करके इस दुनिया से लाखों करोड़ों लोगों को मारा गया। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र, सबसे बड़ा साजिश थी और इस प्रकार की साजिश से बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अलग अलग देशों में साजिश करते हैं। इस बार पूरी दुनिया के स्तर पर इन लोगों ने साजिश की और पूरी दुनिया में एक मानव जाति के नाम पे लोगों ने कलंक लगाया कि मनुष्य में ऐसे मनुष्य भी हो सकते हैं जो अपने ही लोगों को मारने के लिए इस हद तक इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप काफ़ी जो हमारे दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहाँ पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं।
तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा और बताइए, और जो WEF है वो जो संस्था है उसके जो मेंबर हैं वो उसके बारे में बताइए कि हमें ये तो पता है कि यहाँ पर जो कनाडा के जो पॉलिटिशियन हैं वो काफ़ी मेंबर हैं उसके, और इतना तो पता है कि WEF जो है वो मानवता के अगेंस्ट है। तो आप बताइए कि वहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर कौन कौन से वो मेंबर हैं, इवन जहाँ तक मुझे ज्ञान है जो मैंने सर्च किया है उस पर जरूर बताइए WEF के बारे में। थैंक यू। हाँ जी बताइए। जी 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 देखिए, ये जब से ये मामला शुरू हुआ तब से हम लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। जैसे ही आपको जैसे पता है कि सबसे पहले इन लोगों ने बताया कि चीन के वुहान शहर में कोई बड़ी बीमारी फैल चुकी है और वहां पर लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है और लोगों को घरों के अंदर बंद किया जा रहा है। चीन के बाद सेकंड नंबर पर जो देश जो इसको बताया गया वो था ईरान। उस समय हिंदुस्तान में इसको लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी थी कि भैया महामारी फैल रही है, हमें देश में क्या करना चाहिए। उसी वक्त हमने कहा था कि इस प्रकार की कोई महामारी नहीं हो सकती है, ये झूठ है। और उस समय शुरुआत में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के स्कूलों को 15 दिन के लिए बंद कर दिया और बोला कि सभी छात्र अपने अपने घर चले जाएं। जो बाहर से जो छात्र आए हैं हॉस्टल खाली, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। उसी वक्त हमने अरविंद केजरीवाल साहब को चिट्ठी लिखी। हमने कहा नहीं, आप ये काम गलत कर रहे हैं, ऐसी कोई महामारी नहीं होती कि इस प्रकार से स्कूल कॉलेज को बंद करने की आवश्यकता पड़े। न इतिहास में कभी ऐसा हुआ, न भविष्य में कैसा अभी कैसा हो सकता है कि इस प्रकार से हम स्कूल कॉलेज को बंद करें। और जो युवा होता है, युवा तो सबसे अधिक हेल्दी होता है, किसी भी देश का यंगस्टर जो होता है सबसे अधिक हेल्दी होता है, वो इस प्रकार से किसी महामारी में नहीं आ सकता। इस बात को लेकर के हमने अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे अपनी बात को रखना प्रारंभ किया। तो चूंकि इस मामले में सभी लोग एक साथ थे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी एक साथ थे, तो हमारे ऊपर तमाम तरह के गाली गलौज और उल्टे सुलटे कमेंट इन लोगों ने शुरू किए। रोज सोचता था कि आज इतनी गाली पड़ रही है, चलो कल आज आज लास्ट है, कल से मैं कुछ इस पे काम नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा। लेकिन फिर अगला दिन होता है, लगता है यार दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, देश इससे बर्बाद हो रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। गाली मिलती है तो कोई बात नहीं, फिर अगले दिन आते हैं, फिर कोई वीडियो बनाते हैं, फिर डालते हैं, फिर लोगों को जागरूक करते हैं, फिर गाली खाते हैं। ये चलता रहा कई महीनों तक। इस दौरान मैंने 450 ईमेल लिख दिया देश के तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ सचिव को, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ सचिव को, बड़े बड़े मीडिया वालों को, सबको 450 ईमेल लिखे मैंने। और 450 ईमेल लिखने का मान के चलिए 3-4 महीने का टाइम मुझे लगा इसमें, एक एक रोज बताने में इनको। अब आपको जान करके ये बड़ा ताज्जुब हो, आपके दर्शकों भी जो सुनेंगे, अभी तक एक भी ईमेल का जवाब नहीं आया। यानी कि कोई तो चीफ मिनिस्टर, कोई हेल्थ मिनिस्टर, कोई हेल्थ सचिव, कोई मीडिया वाला हमको जवाब देता कि भाई आप गलत बोल रहे हैं और आपके जो विचारों के खिलाफ ये हमारे तथ्य मौजूद हैं। जब कोई जवाब नहीं आया तब मुझे लगा कि भैया ये तो सारी के सारे पार्टी एक साथ मिली हुई है। मैंने कहा तो सबके सब मिले हुए हैं आपस में। फिर हम लोगों ने इनकी खोजबीन शुरू की, तो चाहे वो बीजेपी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, दिल्ली के जो सीएम है उनको तो मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। तो हमने इस मैग्सेसे अवार्ड की भी जांच पड़ताल की, भाई मैग्सेसे अवार्ड कहाँ से मिलता है, कौन देता है। तो अल्टीमेटली ये सामने आया कि मैग्सेसे अवार्ड को जो फंडिंग होती है वो रॉकफेलर करता है। रॉकफेलर ब्रदर्स जो है वो मैग्सेसे अवार्ड की फंडिंग करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो फंडिंग कर रहा है, वो किसी को पहले से इनाम दे रहा है, तो निश्चित तौर से कोई बात हुई होगी। अभी आप देखेंगे कि दावोस स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, दिल्ली के सरकार की तरफ से राघव चड्ढा, जो कि इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको इन लोगों ने वहां भेजा और राघव चड्ढा ने जाकर के वही बात कही जो कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या चाहता है। और जैसे ही अभी आपको मैं एक बड़ी और बताना जा रहा हूं कि इस बार
फरवरी मार्च में दिल्ली का बजट आया था। दिल्ली के बजट में एक घोषणा की गई है और घोषणा ये की गई कि दिल्ली के सभी स्कूल, सभी कॉलेज अगले 5 वर्षों में डिजिटल होंगे, ऑनलाइन होंगे। ये दिल्ली के बजट में एक घोषणा की गई है कि अगले 5 वर्षों में तमाम स्कूल, तमाम कॉलेज को डिजिटल करना है और ऑफलाइन एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन जो प्रॉपर होती है, उसको उनको बंद करना है। तो ये निश्चित तौर से, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब के सब एक ही हमाम के अंदर बैठे हुए हैं। जब ये जो अभी हम लोग कल परसों आईसीएमआर के पास गए थे। आईसीएमआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वहाँ एक डायरेक्टर है राजीव बहल। उनको हमने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट दिया कि भैया आप लोगों ने जो रिसर्च की, उस रिसर्च में तो आप लोगों ने बताया ही नहीं कि भाई इसी कालखंड के दौरान में किसान आंदोलन चल रहा था और लाखों लोग किसान दिल्ली के आसपास बैठे हुए थे, किसी को कोरोना हुआ भी नहीं और किसी को डेथ भी नहीं हुई, तो आपने जांच पड़ताल क्यों नहीं करी, आपने रिसर्च क्यों नहीं करी? तो राजीव बहल के पास जो आईसीएमआर का डायरेक्टर है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बोला जी मैं तो 10 महीने पहले आया हूँ, पहले कोई और था। और वो 10 महीने पहले हमने पूछा कहां से आया, तो डब्ल्यूएचओ से आया है। तो ये जो डब्ल्यूएचओ की मिली बकत है, यहाँ के बंदे डब्ल्यूएचओ जाएंगे, डब्ल्यूएचओ के बंदे यहाँ पर आएंगे। सोचिए, वो राजीव बहल जो डब्ल्यूएचओ से आया है, वो 10 महीने पहले इंडिया में आया, तो जब वो डब्ल्यूएचओ में था तो वहीं बैठ करके सब योजना बना रहा था वो। ये जो गद्दार जो देश में इकट्ठे हो गए हैं, और ये गद्दार पॉलिटिशियंस भी हैं, एकेडमिशियंस भी है, साइंटिस्ट भी हैं, ये सब लोगों ने मिलकर के पैसा खाया और अपना जो आत्मा है, अपनी आत्मा को गिरवी रखा। मुझे लगता है इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट की आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट बहुत पहले ही प्रारंभ कर दिए थे। 2020 से ही मैंने प्रोटेस्ट प्रारंभ कर दिए थे, हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए थे। हम लोग किसान मूवमेंट में गए, वहां पर जाके हमने किसानों को समझाया कि आपको इस महामारी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग डरे हुए थे, हमने कहा आप बिल्कुल मत डरिए, आपको मास्क नहीं पहनना है, आपको वैक्सीन नहीं लेना है, आपको कोई आर्टिफिशियल टेस्ट भी नहीं कराना है। कोई टीम यहाँ पर आएगी, बोली जी टेस्ट करेंगे, तो आपको टेस्ट नहीं कराना, क्योंकि उस टेस्ट में एक्टिविटी ऑटोमेटिक आएगी। अगर उस टेस्ट को पानी भी टेस्ट किया जाए, सिंपल टैप वाटर टेस्ट किया जाए, तो टैप वाटर भी आपका कुछ न कुछ पॉजिटिव दिखा देगा। अगर 100 सैंपल लेंगे तो 2, 4, 5, 10, 20 पॉजिटिव आ जाएंगे, और जिसको पॉजिटिव आ जाएंगे बोलेंगे भाई तेरे को तो कोरोना हो गया और तू तो भैया जो है अपने घर के अंदर बंद हो जा। और घर के अंदर बंद करके उसके बाद पुलिस का पहरा लगा दिया। पुलिस इतनी जबरदस्त घर से बाहर जा नहीं सकता, तो ये पुलिस जहां पर आम नागरिकों के प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए, वहां पर पुलिस को वहां पर लगा दिया लोगों ने। हमने देखा हमारी सोसाइटी के बाहर जो है पुलिस का पहरा लगा हुआ था। हमने इसका विरोध किया, जगह जगह विरोध किया। उस टाइम पे हमने महात्मा गांधी की समाधि पे गए, वहां पर जाकर विरोध। टाइम पे हमने जंतर मंतर पे जाकर के अपना धरना प्रदर्शन दिया, वहां विरोध किया। उस टाइम पे हमने पार्लियामेंट, जो प्रधानमंत्री हाउस है, पीएमओ जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री कार्यालय, वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री का घेराव करने की कोशिश की। वहां से हमको लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, अरेस्ट करके हमको थाने ले जाया गया। उसके बाद में दिल्ली सचिवालय के बाद हमने 3 दिन तक लगातार धरना दिया। लगातार 3 दिन 2 नाइट हम वहीं बैठे रहे और केजरीवाल साहब को हमने बराबर कहा कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मास्क वॉलंटरी है, सबको मास्क नहीं लगाना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जिसने मास्क नहीं लगाया उसको 2000 रुपए का जुर्माना देना है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये सामने दिख रहा है। एक तरफ डॉक्यूमेंट कह रहा है कि मास्क नहीं पहनना है, मास्क कंपलसरी नहीं है, दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं पहनोगे तो 2000 का जुर्माना है। हमने 3 दिन तक लगातार धरना दिया, तो वो जो मास्क का चालान था वो 2000 का, वो कम करके इन लोगों ने 500 रुपए का चालान कर दिया और कुछ और रेस्ट्रिक्शन हटा दिए इन लोगों ने। तो उसके बाद ये 2023 चल रहा है। 2023 में हमने लगातार प्रोटेस्ट अपने जारी रखे हुए। जंतर मंतर पे 3 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। 30 अप्रैल को हमने प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद में हम लोग 4 जून को प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में हम लोगों ने 16 जुलाई को प्रोटेस्ट किया। अभी हम 27 अगस्त को दोबारा एक बार फिर चौथी बार प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। प्रोटेस्ट में हम लोग अपना ज्ञापन तैयार करते हैं, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं। हम उनसे मांग करते हैं कि भैया ये जितनी भी महामारी के नाम पर आपने जो पूरा खेल खेला, अगर आपको पता है, आपने खेला है, आप शामिल है, तो आप बताइए। आप नहीं शामिल है तो इसकी जांच करवाइए। और जो लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन के नाम पर जो करोड़ों भारतीयों का व्यवसाय खत्म हुआ, लोगों के बिजनेस खत्म हुए,
लोगों को अपने अपने घर पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, मजदूरों की मजदूरी चली गई, छोटे मोटे कारीगर बेरोजगार हो गए। इन सबको आप लोग अब मुआवजा दें। जितने भी लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट साइंटिस्ट और ये करप्ट बिजनेसमैन जो टॉप लेवल पे हैं, इनका पैसा छीना जाए। पेश करके जो गरीब लोग जिनका नुकसान हुआ व्यापार के अंदर या नौकरी में, उनको मुआवजा दें। साथ में वैक्सीन से हिंदुस्तान में मौतें हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में अब तक लगभग 3 करोड़ मौतें हो चुकी है वैक्सीन से। मौतों को आंकड़ों को ये बहुत छिपाते हैं। अभी हमने जब 3 बार प्रोटेस्ट किए और सरकार से बार बार कहा कि 3 करोड़ लोग मौतें हो चुकी है, तो सरकार अभी आईसीएमआर के पास पहुंची है। आईसीएमआर के डायरेक्टर से मिलकर सरकार ने बोला कि आप जांच कीजिए, ये जो एक्सेस डेथ हो रही है, यंगस्टर्स मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। अभी हम आईसीएमआर से मिलकर आए, आईसीएमआर के डायरेक्टर, मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो लिपापोती करने की कोशिश करेगा और सरकार चाहती है कि ऐसी एक रिपोर्ट बना के दे दी जाए कि ये जो अतिरिक्त मौतें हो रही है वैक्सीन की वजह से नहीं हो रही है, ये किसी और वजह से हो रही है। तो इस प्रकार की लिपापोती की संभावना हमें नजर आती है। आईसीएमआर का जो डायरेक्टर राजू बहल है, हमें मुझे तो किसी भी एंगल से वो व्यक्ति ईमानदार और सत्यवादी नहीं दिखता है। तो ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, इसकी वजह से ये जो 2 मांगे हमने खास तौर से रखी है। सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। सरकार अभी हिंदुस्तान में एक और बड़ी बात हो रही है, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक वाहन की अभी आप लोगों ने बात कही थी। भारत में दिल्ली एनसीआर में एक कानून पारित हो चुका है और दिल्ली एनसीआर के बाद धीरे धीरे ये अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, अलग अलग सिटी में कर रहे हैं। जो भी गाड़ी डीजल की है उसको 10 वर्ष बाद जबरदस्ती कंडम किया जा रहा है, और जो भी गाड़ी पेट्रोल की है उसको 15 वर्ष बाद जबरदस्ती कंडम किया जा रहा है। यानी आपकी 10 वर्ष से पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 वर्ष से पुरानी पेट्रोल की गाड़ी को आपको रोड पे चलाने का अधिकार नहीं। आपके घर से जबरदस्ती उठा उठा के उसके स्क्रैपिंग की जा रही है, उसको नष्ट किया जा रहा है। आप बताइए, किसी की गाड़ी अगर नहीं चली है तो कहाँ से पॉल्यूशन करेगी? पॉल्यूशन तो 10 और 15 वर्ष में तो कोई गाड़ी पॉल्यूशन नहीं करती है। कोई बहुत अधिक चली है वो कर सकती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गाड़ी शौक, दो दो गाड़ी रखते हैं, गाड़ी शौक के ना के तौर पे है, कभी चली कभी नहीं चली, है ना। उनकी गाड़ी को भी आप लोग कंडम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कानून लागू करके देश में लोगों के ऊपर हर तरह से जबरदस्ती का रूल चल रहा है। भैया ये रूल बना दिया है, आपको ये रूल फॉलो करना है। देश के संपत्ति जो कितना नुकसान हो रहा है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, और हर व्यक्ति इतना पैसे वाला नहीं होता कि 2-4 गाड़ी ले ले, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता है, बैंक से लोन लेता है, लाख 2 लाख रुपए गाड़ी उठाता है और महीने की 10,000 20,000 30,000 40,000 की उसकी जो ईएमआई होती है वो ईएमआई भरता रहता है। अब आपकी गाड़ी को कंडम कर दिया गया तो अब आपको फिर दोबारा नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, आपको नया ईएमआई चलेगा, तो आप तो कर्जे के जाल में फंस गए। तो लोगों को, आम लोगों को कर्जे के जाल में फंसाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और शुरू हो चुका है टाइम पे। दिल्ली एनसीआर में ये कानून बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा करके आसपास के दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। बाद में कुछ और शहरों में लागू होगा। तो जिस प्रकार से बातें बन रही है उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि देश को, दुनिया को खास तौर से एक एक करके कर्ज के जाल में फंसाना और फंसा करके उनको अपनी बातें, जो व्यक्ति कर्ज में फंसा हुआ है वो आपकी बातें मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। आप बोलोगे मुझे मेरा पैसा दे दो, तो पैसा कहाँ? आप बोलोगे जो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, जैसे आप उससे मोहलत मांगोगे वो कुछ नई शर्तें रख देगा। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। 2014 में, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोधी भी नहीं हूं। मेरे लिए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है। तो अगर मैं कोई कमेंट कर रहा हूं तो वो बीजेपी के खिलाफ मान के नहीं किया जाए या कांग्रेस के खिलाफ नहीं माना जाए। 2014 में मोदी सरकार हमारे देश के अंदर आई, देश में प्रधानमंत्री जी मोदी बड़े। देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थी, हमें भी थी और मुझे लगता है आप लोगों को भी उम्मीद होगी कि भैया मोदी जी आए तो कुछ करेंगे। आपको जानकारी नहीं होगी शायद, देश में उस समय 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, और अभी आज के 5 महीने पहले वो कर्जा बढ़ करके पिछले 10 सालों में, 9 सालों में 155 लाख करोड़ हो गया, और आज की तारीख में वो कर्जा 169 लाख करोड़ हो गया है। जो कर्जा 55 लाख करोड़ का था वो 169 लाख करोड़ का हो गया है। देश के ऊपर डेप्ट, कर्जा 3 टाइम्स हो गया है 10 सालों में। 10 सालों में आपने, देश की सरकार ने इतना बड़ा कर्जा ले लिया है। इस कर्जे से
कोई भी दुनिया का, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कहीं भी हो, अगर वो ये बता दे कि भैया 3 गुना प्रोग्रेस हो गई है, 3 गुना कर्जा लिया तो 3 गुना प्रोग्रेस भी दिखनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स सरकार की बढ़ गई है, सरकार कहती है हमारा इनकम टैक्स बढ़ गया है, सरकार कहती है हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है, सरकार कहती है हमने पेट्रोल और डीजल से हमारा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, सरकार कहती है नोटबंदी से उनकी इनकम हुई है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको इतना इतना उधार लेना पड़ रहा है, उतना कर्जा लेना पड़ रहा है। ये जो कर्जे का षड्यंत्र है ना, हर व्यक्ति को कर्जे में डाल दो, सरकार को कर्जे में डाल दो, उसके बाद जो जो भी सरकार कर्जे के अंदर है, मजबूरी हो जाएगी कि आपके तमाम शर्तों को मानने की। ये एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अभी स्टूडियो में आना चाहता हूँ दोबारा। हमारे कुछ सवाल हैं प्रभजीत बोपरा से, तो मैं फिर आपसे अभी जुड़ता हूँ, मगर हम लगता है कि हमारे पास अब समय की कमी है, तो होपफुली आई विल अभी आपसे जुड़ते हैं दोबारा, मगर मैं ज़रूर बोपरा जी से थोड़े सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोਪਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਰੱਗ ਹੋ ਗਈ, LGBTQ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3, 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਰੱਗ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦ 6th ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, 6th ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲੋਂ। 6th ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8th ਗ੍ਰੇਡ 9th ਗ੍ਰੇਡ 10th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਡਰੱਗ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਡਰੱਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਨੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਿੰਜ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਡਰੱਗ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਕੀਨ ਹੋਈ, ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਫ੍ਰੀ ਡਰੱਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਫ੍ਰੀ ਪਿਓਰ ਡਰੱਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਬਰ ਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਰੋਵਾਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50+ ਮੈਰੋਵਾਨਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੇ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2018 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਰੋਵਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਈ, ਇਕੱਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2018 ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 9 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਰੋਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 20 ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੀਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਰੋਵਾਨਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ।
बस ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ भी क्लोजिंग रिमार्क्स सुनाए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपके पास 2-3 मिनट हैं, आप नटशल में सारा कुछ बताइए कि समराइज करके कि जो भी क्या हमें और कदम उठाने चाहिए इसके लिए कि जो इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड षड्यंत्र है, ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान को एक दोषी ठहरा सकते हैं। हिंदुस्तान तो एक मतलब ये कह सकते हैं कि ये तो पॉलिटिशियन कठपुतलियां हैं उनके, और इसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, बताइए। देखिए, पूरी दुनिया की जनता को ये जानने की आवश्यकता है कि ये दोबारा फिर होगा। 2025 में इन लोगों ने फिर से प्लान कर रखा है, तो 2025 में या तो स्पार्स पेंडेमिक लेके आएंगे या बोलेंगे कि डिजीज एक्स आ गया है। तो ये जो पूरी कहानी है 2025 से लेकर के 2028 तक रिपीट होने वाली है, और 2030 तक का जो इनका लक्ष्य है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो लागू करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एजेंडा है, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तो 2030 तक सारी ओनरशिप ये लोग लेने वाले हैं, और 2030 तक पूरी दुनिया को, ये हिंदुस्तान तो जैसा आपने बताया कि इसी का पार्ट है। जितने भी पूरी दुनिया में लोग हैं, सब के सब जो पॉलिटिशियन की कठपुतलियां हैं, तो 2030 तक का जो उनका लक्ष्य है पूरी दुनिया को गुलाम बनाने का, वहां तक ये पहुंच जाएंगे। अभी आपके सामने एआई भी आ चुका है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, रोबोटिक्स भी आ चुका है। रोबोटिक्स कितनी जॉब खा रहा है, एआई कितनी जॉब खा रहा है, वो भी हम लोगों को पता चल चुका है ना। तो अब इस बात की हमारे पास में समय 2-3 साल का समय है। 2-3 साल तक लगातार प्रतिदिन हमें इस बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाना है, अलग अलग लोगों को बताना है। किसी को अगर कोई अगर ऑनलाइन नहीं आ सकता तो हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं, किसी को रेडियो के माध्यम से बताया जा सकता है, किसी को छोटे मोटे न्यूज़पेपर के माध्यम से, क्योंकि बड़ा जो पेपर है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो इनके साथ में बिका हुआ, तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। हमारे पास जो भी तरीका मिले, जो व्यक्ति जहां मिले, हम तो जहां भी जाते हैं, हम तो यदि टैक्सी भी करते हैं किसी वजह से, वहां भी टैक्सी में बैठे कर ड्राइवर को सब बताते हैं। हमें अगर 10 बंदा कहीं भी मिलता है, मैं जहां जाता हूं, मैं किसी दिन ट्रेन में बैठ के जब अपने नेटिव प्लेस जाता हूं, तो वहां पर जितने लोग मिलते हैं सबको एजुकेट करता जाता हूं। जहां मौका मिले वहां लोगों को एजुकेट कीजिए, लोग एजुकेट होंगे, तब जाकर के जैसे ही इनका कुछ नया प्रोग्राम आएगा, वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों ने कोशिश की थी। भारत में मंकी पॉक्स की इन लोगों ने बहुत ट्राई की थी कि मंकी पॉक्स आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, लेकिन जब तक ये मंकी पॉक्स की बात करते, तब तक हम लोगों की मेहनत से देश में कई लाख योद्धा तैयार हो चुके थे। जैसे ही मंकी पॉक्स आया, लोगों ने बोला ये फेक है, कोई मंकी पॉक्स नहीं है, तो लोगों ने विरोध किया, तो वो ये हमका मंकी पॉक्स डंप हो गया। तो पूरी दुनिया तक जानकारी जाए कि ये पूरा गेम हुआ है, ये पूरा षड्यंत्र हुआ है, ये पूरा मीडिया का प्लान था ये पूरा, और ये जानकारी दुनिया को मिलेगी। हर स्तर पर लगातार प्रयास करें, लगातार प्रोटेस्ट करें, जहां मौका मिले, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, जैसा भी हो सके, एसएमएस करके, फोन करके, बात करके, आपस में चर्चा करके, पार्क में जा करके लोगों को एजुकेट करें। तो इनका ये जो एजेंडा है, जो 25 से लेकर 28 तक का जो अगली महामारी का, वो फेल हो जाएगा, और 2030 तक को जो दुनिया को जो गुलाम बनाने का जो इनका एजेंडा है, वो, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन हमें इस बात को आगे से आगे अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका, और आप इतने कीमती समय में आपने समय निकाला और हमें, हमारे दर्शकों को और पूरी दुनिया को आपने पूरा ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपकी नॉलेज है, हम सलूट करते हैं आपको, और आप ऐसे ही अपनी ज्ञान बांटते रहिए दुनिया को, और होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप जैसे लोग हैं दुनिया में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये भगवान तो फिर उनका ही साथ देता है ना, जो सच्चाई के राह पर चलते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी जल्दी, तो आपके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, प्रोग्राम धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ जी,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਪਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੇਵ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਕਿ ਪਲੈਂਡਮਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਪਲੈਂਡਮਿਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਲੈਂਡਮਿਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਫ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਨੇ ਐਰਨ ਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, LGBTQ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਮਲੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2035 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਊਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ, 7 ਸਾਲ ਕਰਤੀ। ਮੇ ਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਬਸ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਲੋਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਬਸ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ। ਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਪਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਤੋਂ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ 1G ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2G ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 3G ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ H1N1। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ H1N1 ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ H1N1 ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ 4G ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5G ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਲਈ, 2 ਲਵਾ ਲਈਆਂ, 3 ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਿਲਗਾਡੋ ਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪਊਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਪਰਾ ਜੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।